गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा की मीटिंग के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एस जयशंकर ने दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान पर जोरदार हमला किया। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी वज़ीर खारजा एस जयशंकर को बिलावल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की इंडस्ट्री है। एस जयशंकर दो टोक अल्फाज में कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है और हमेशा रहेगा। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयान पर कहा कि जो मुल्क दहशतगर्दी को फरोग देता है वो अमन की बात नहीं कर सकता। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India, and the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. And you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. It's depleting even faster than its forex reserves. So you know, let's be clear what this is about. On your question, you know, is this a breakthrough? Look, he came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. And I think nothing that from what he said or what I heard he said deserves for this to be treated more than that. देखिए, I said उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है. I will also say उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. On the weaponization, you know, it's a very interesting statement because it unconsciously reveals a mindset. What does weaponizing something mean? It means that the activity is legitimate and somebody is weaponizing it. So you say you are weaponizing trade, you are weaponizing technology. Somebody says you are weaponizing terrorism, that means they think terrorism is legitimate, that we should not weaponize it. That is normal. Okay. Now, what are we doing? We are countering ourselves, countering terrorism. We are defending ourselves. We are calling it out. We are exposing it. And some of it is what you saw today. So, you know, to me, we are not scoring diplomatic points. We are politically, diplomatically exposing Pakistan before the world. And as a victim of terrorism, I'm completely entitled to do so. I mean,
what do you mean we should not weaponize terrorism? That means as a victim I'm supposed to put up with it. I mean, so you not only commit terrorism, but you say, oh, please do not even speak about it. I mean, come on. So, to me, that sentence, it spoke so much about a mindset of that country. राजौरी के कंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। केसरी हिल इलाके में ऑपरेशन जारी है। आज इलाके में मुहासरा और तलाशी के दौरान ये इनकाउंटर शुरू हुआ। इस इनकाउंटर में फौज के 5 जवान शहीद हो गए। इनकाउंटर साइट पर फोर्सेस अभी भी मौजूद है। इलाके का मुहासरा करते हुए जंगल में मौजूद मकानों की तलाशी ली जा रही है ताकि मिलिटेंटों को इलाके से निकलने का मौका न मिल सके। अंधेरे का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट फरार हो गए, लेकिन फोर्सेस के मुहासरे के बाद मिलिटेंटों का इलाका छोड़ना मुश्किल है और बहुत जल्द दिन के उजाले में मफरूर मिलिटेंटों को ढेर किया जाएगा। इस वक्त मैं राजौरी के कोटरंका कंडी इलाका में हूं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट जो है वो बंद हो रही है। दुकानें जो हैं वो बंद की जा रही हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आप तस्वीरें देखेंगे, ये जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से यहाँ मार्केट जो है वो क्लोज़ की जा रही है क्योंकि इस पूरे एरिया में जो है वो दहशत का माहौल है और ये सेक्टर भी पूरी तरह से, क्योंकि ये लोग जो हैं अपने घरों के अंदर जो हैं वो खुद को महफूज समझ रहे हैं, इसलिए ये जल्दी ही बंद करके घरों के अंदर जा रहे हैं। इस पूरे एरिया में जो है वो सर्च है, पूरे एरिया में तलाशी जो है वो ली जा रही है। कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बना हुआ है और कहीं ना कहीं पूरे एरिया को जो तलाशी लेने के बाद जो है वो इन लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं खौफ है और ये लोग जो हैं पूरी तरह से डरे हुए हैं, तभी जो है वो जल्दी जो है मार्केट बंद कर रहे हैं। हाँ, डर है तब तो जल्दी कर रहे हैं। सर्च चल रही है पूरी? हाँ, सर्च चल रही है। और आर्मी ठीक कर रही है। सोच चल रही है। हाँ, आप चाहते हो कि जल्दी आतंकी मारे जाए? हाँ, जल्दी मारे जाए। ऐसे गंदे लोगों को जो है गलत ये करते हैं को होना चाहिए। हाँ, जल्दी मारे जाए, होना चाहिए। पूरे एरिया में लोगों को क्या कहा गया कि घरों के अंदर ही रहें? हाँ, घरों के अंदर ही रहे, कहीं जाए नहीं, बगैर मतलब से कहीं ना निकले। जहाँ तो इनका ये कहना है कि लोगों को ये सलाह दी गई कि वो बिना मतलब के कहीं ना घूमें और घरों के अंदर रहें क्योंकि हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पूरी तरह से बसरा हुआ है। ये लोग जो हैं तमाम घर में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। रात का अंधेरा का वक्त है इस वक्त और घरों के अंदर हैं तमाम लोग। किसी भी व्यक्ति को बाहर आने की इजाज़त जो है वो नहीं है और लोगों को ये सलाह है कि वो घरों के अंदर रहें और किसी भी तरह की नकलो हरकत अगर वो देखते हैं तो फौरी तौर पर उसकी इतला जो है वो फौज को दें। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम पर हैं। कर्नाटक के बेलारी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर शदीद हमला किया। इस दौरान उन्होंने फिल्म द केरला स्टोरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म केरला कहानी इन दिनों बहस में है। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह रियासत केरला में दहशतगर्दी की साजिशों को फरोग दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मंशूर में बहुत सारे झूठे वादे हैं। कांग्रेस के मंशूर का मतलब है तालाबंदी और खुशामद का गढ़ा। मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी कांग्रेस को एतराज है। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं ये देखकर हैरान हूं कि कांग्रेस अपने वोट बैंक की खातिर दहशतगर्दी का शिकार हो गई है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस
पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। आज दिन भर एनसीपी में शरद पवार के इस्तीफे को लेकर काफी गहमी रही। आज पार्टी के आला अहदेदारों ने इस सिलसिले में मीटिंग की और पार्टी के तमाम कारकुनों के जज्बात और शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने के दबाव और उनकी हिमायत में एहतजाज पर फैसला किया गया कि शरद पवार ही पार्टी के सदर बने रहेंगे। पार्टी मीटिंग के बाद शरद पवार ने खुद मीडिया से बात की और अपना इस्तीफा वापस लेने का बाकायदा ऐलान भी किया। शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने के ऐलान के साथ ही पार्टी कारकुनों ने इत्मीनान की सांस ली और खुशी का इजहार किया। वजरे के गुज़श्ता 4 दिन से पवार के इस्तीफे को लेकर पूरे महाराष्ट्र में पार्टी कारकुनों में बेचैनी थी, जिसके बाद कारकुनों ने मुंबई पहुंचकर पवार से इस्तीफा वापस लेने का दबाव बनाया और ख्वाहिश की कि वो वही पार्टी की बागडोर संभालें। माझ्या जीवनाची यशा अपयशामध्ये सर्व प्रकारच्या आव्हानांशी मुकाबला करते वेळी आपण माझ्या सांगितली जाहिरात त्याबद्दल मी अवसर कायमचं जबाबदारी ही पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे पुनश्च जाहीर करतो। धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला पटन करेरी के वानीगाम में मुठभेड़। लश्कर ए तैयबा से जुड़े 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी पिछले मार्च से थे सरगर्म। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर से दहशतगर्दों ने आम शहरियों को निशाना बनाया। हथियार बरदार अफराद ने एक स्कूल में घुसकर शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले 8 असातिज़ा को निशाना बनाकर हलाक किया। इस हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन ने एहतजाज किया। मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में नमाज जुमा के दौरान आगा हसन ने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह से शिया आबादी पर दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के उन दावों के खिलाफ है जहां वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी भी मजहब पर कोई रोकथाम नहीं है। आगा हसन ने कहा कि माजी में भी पाकिस्तान में इस तरह के शिया अफराद को निशाना बनाया गया और हुकूमत कोई ठोस इक़दाम नहीं करती है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह के हमले रोके जाने और तहकीकात की जाए। कल पाराचनार खून की होली खेली गई, इससे पूरे आलम इंसानियत गमज़दा है, दुखी है। उनका ये हज़ारा बरादरी का ये मुकद्दर ही बना है। इससे पहले भी उन पर इस तरह के हमले होते रहे हैं। यकीन दहाड़ियों के बावजूद और कमेटी बनाने के बावजूद आज तक उनको कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। मैं आपके वसातत से अपना ये एहतजाज बुलंद करना चाहता हूँ। आज इस वाक़े पर गैर जानिबदार तहकीकात तो होना चाहिए और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाए उसको इबरतनाक सजा देने में कोई तामुल नहीं होना चाहिए। ये ममलकती
पदादादी पाकिस्तान के नजरे के खिलाफ है, जिसमें यही बयान किया गया था हर एक को इंसाफ मिलेगा, हर कोई अपने अकायद के हिसाब से इबादत करेंगे। मगर इस तरह का हाल ही में कल जो हुआ है, इसको मैं पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। और उन्हीं के जिस तरह उन्होंने इस सिलसिले में बयान दिया है और इस सिलसिले में यकीन दहानियां की है, वो उस यकीन दहानी को अमली शक्ल दे, ताकि शिया एसोसिएशन के सदर व पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दों की तरफ से शिया मसलक के शहरियों पर निशाना बनाने पर पाकिस्तान को नाकाम मुल्क करार दिया। उन्होंने कहा कि हर रोज़ और हर जुमा शिया मसलक के शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए अफसोसनाक है। वहीं शिया बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों कश्मीरी नौजवानों ने आलमगीरी बाजार जडबल श्रीनगर में पाकिस्तान में शियाओं के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान में शियाओं के कत्ल की मजम्मत की। एहतजाजियों ने इसे पाकिस्तान में शिया बरादरी की नस्ल कुशी करार दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी मजहबी और नस्ली अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा है। उन्होंने बेगुनाहों के कत्लेआम और हलाक होने वाले ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती की। पाकिस्तान पर शिया बरादरी पर हमले के खिलाफ श्रीनगर में भी कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हम तो मजम्मत करते हैं जहाँ पे भी दहशतगर्दाना इकदाम हो, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में, चाहे लिंचिंग कहीं पे हो या कहीं पे कत्ल गारत किसी एतबार से हो। जहाँ पे भी कत्ल गारत होगी, चाहे वो लिंचिंग के एतबार से, चाहे वो खुफिया तरीके से हमला किया जाए और चाहे वो आम इंसानों पे या टीचरों पे किया जाए, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ये हम अपनी तरफ से मजम्मत नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारे दीन इस्लाम की तालीमात है। दीन इस्लाम की तालीमात इंसानियत की तालीमात है, उसी की रो से हम मजम्मत करते भी हैं और करते रहेंगे। शिया बरादरी को पाकिस्तान में जिस तरह से हलाकत हो रही है, एक बार फिर पूरी तरह से गम और गुस्सा है। जम्मू कश्मीर के आवाम और ख़ासकर आज श्रीनगर में कैंडल मार्च भी निकाला गया और पाकिस्तान को उनके अपने आवाम के ख़िलाफ़ हथियार उठाने वाली ये सरकार और दहशतगर्दों ने हर जुमा, हर गुजरते दिन शियों का कत्लेआम हो रहा है। एक बार फिर कश्मीर के शिया बरादरी में गम और गुस्से की लहर है। इस पर पाकिस्तान को आज आड़े हाथों लिया है कि पाकिस्तान अपनी अवाम और शिया बरादरी की हिफाजत में पूरी तरह से नाकाम हुआ है और पाकिस्तान में खुद अपने मुल्क के अंदरूनी माहौल में दहशतगर्दी को इस तरह परवान चढ़ाया कि वो मसलकी तनाजुर में एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। इस वक्त पर हमारे नुमाइंदे शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। शब्बीर, शिया बरादरी का कत्लेआम पाकिस्तान में, पूरे कश्मीर में गम गुस्सा है शिया बरादरी में। जी हाँ जिलानी, यहाँ कई इलाकों में आज एहतजाजी मुजाहरे हुए। शाम में आज शाम गनीबत जो इलाका है, जो शिया बरादरी यहाँ की है, ज़्यादा तादाद में वहाँ रहती है, वहाँ कैंडल लाइट मार्च भी हुआ, एहतजाज उन्होंने किया। उससे पहले दिन में भी कई जगहों पे यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे हुए। बडगाम में भी जो उलमा है उन्होंने भी इस पे नाराजगी का इजहार किया। जो सुन्नी बरादरी यहाँ की है वो भी इन चीज़ों से काफ़ी खफा है कि एक जो माइनॉरिटी है शिया बरादरी, वहाँ पे उन पे किस तरह के ये हमले हुए। तो काफ़ी गम गुस्सा लोगों में है कि इस तरह एक तो आप एक माइनॉरिटी को निशाना बना रहे हैं और दूसरा उस्ताद है, वो जो उस्ताद थे वहाँ पे उनको निशाना बना दिया गया। जी, और एक तरह से आज मजहबी उलमा ने भी बहुत इस पर सख्त नुक्ताचीनी की। एक ऐसा मौका है जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान में हैं और पाकिस्तान में शियाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, ये एहतजाज के ज़रिए पाकिस्तान की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तान में शिया बरादरी कितनी खफा है पाकिस्तान की हरकत से। देखिए जिलानी, ये एक बरादरी का ही मसला नहीं है, ये इंसानों का जहाँ भी इस तरह की आप उनका कत्लेआम करते हैं या उनको किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाते हैं, तो पूरी आलम इंसानियत जो है वो इन चीज़ों के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है एक कनेक्शन होता है। अगर आप
एक कम्युनिटी में है तो कम्युनिटी का ज्यादा कनेक्शन होता है। तो जाहिर सी बात है जो एहतजाजी मुजाहरे हुए वो ये पैगाम यही है कि हम इस तरह की हरकतों से काफी खफा है और काफी परेशान भी, क्योंकि एक कम्युनिटी का सीधा सीधा एक कनेक्शन होता है, वो एक बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। आमतौर पे भी लोग इन चीजों से यहाँ खफा है क्योंकि कश्मीर ने मार धाड़ कत्ल आम देखा है और यहाँ ज्यादा लोग ये समझते हैं कि किस तरह जब किसी का कत्ल होता है तो किस तरह ये खानदान बिखर जाते हैं, किस तरह का वायलेंस जिंदगी पे असर उसका होता है। तो एक पैगाम जाहिर सी सूरत में ये साफ तौर पे यहाँ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस बातचीत के लिए कि कश्मीर में भी गम गुस्सा है, पाकिस्तान अपने ही अवाम की हिफाजत में नाकाम है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज़ भी जुड़ गए हैं। परवेज़, जिस तरह से शब्बीर ने कहा कि एक कौम का मसला है, एक इंसानियत का मसला है ये, अब एक तरह से कश्मीर में भी गम गुस्सा जताया गया है और पाकिस्तान के साथ ये नाराज़गी, बल्कि पाकिस्तान को खुद ये एहसास होना चाहिए कि वो खुद अपनी आवाम की हिफाजत में नाकाम है, भले ही वो शिया बरादरी हो। बिल्कुल जिलानी, अगर हम बात करें जिस तरह का उसका रिएक्शन यहाँ कश्मीर को देखने को मिला है, यहाँ पे न सिर्फ हमने देखा कि जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, बल्कि आज जितने भी दिन भर हमने प्रोटेस्ट कवर किए वहाँ पे कई कई जगहों पे जो सुन्नी कम्युनिटी के लोग भी वो भी शिया बरादरी के साथ निकले थे और वो भी इन एहतजाजों का हिस्सा बने। बात जब हमारी उनसे हुई तो उनका साफ यही कहना था कि जिस तरह से इंडिया में माइनॉरिटीज को चाहे वो कोई भी माइनॉरिटी हो, जिस तरह से माइनॉरिटीज को यहाँ प्रोटेक्शन मिलती है, उनके हक मिलते हैं, हुकूक मिलते हैं, उसी तरह से वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में उनके भाई शिया कम्युनिटी के हैं या फिर बाकी माइनॉरिटीज के हैं उनको भी प्रॉपर प्रोटेक्शन और उनके हुकूक सारे दिए जाए, जो कि अभी तक नजर होता हुआ नहीं आ रहा है वहाँ पे। यहाँ पे हमने काफी गम गुस्सा देखा इस हवाले से। जो यहाँ पे शिया कम्युनिटी है, हमने यहाँ के लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने भी मिन जुमला इसकी कंडेमनेशन की है, इस बारबरिक एक्ट की, इस हमले की। साथ में जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं या फिर जो रिलीजियस हेड्स हैं यहाँ पे, उनकी तरफ से भी बहुत ही शदीद मजम्मत इस वाक़े के खिलाफ की गई कि जिलानी ये पहली बार नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी चाहे हम क्रिश्चियंस की बात करें या फिर जो सिख कम्युनिटी है या जो अहमदी कम्युनिटी है, वहाँ पे बल्ती कम्युनिटी, हमेशा जो वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको इसी तरह से टारगेट किया जाता है और जिसका आउटबर्स्ट फिर देखने को बाकी जगहों पे मिला है। लेकिन इस बारी जो कश्मीर के अवाम है वो खुल के सड़कों पे निकले हैं, यहाँ पे उन्होंने एहतजाज किए, इस हवाले से उन्होंने कार्रवाई डिमांड की कि कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए उन मिलिटेंट्स के खिलाफ जिन्होंने ये कायराना हमला किया हुआ है। और साथ में उन्होंने इसका सबसे बड़ा जो रीजन वो यही बताया है कि जो रेडिकलाइजेशन जो मिलिटेंट्स की पाकिस्तान में की गई, बिल्कुल परवेज, और मकसद से जी ये गम गुस्सा देखने को मिलता रहेगा क्योंकि कम्युनिटी महफूज नहीं है पाकिस्तान में। शुक्रिया परवेज इस बातचीत के लिए। अब आगे बातचीत करते हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र से, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान में है और आज जयशंकर ने जिस तरह से हमला किया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान के शहरी, भले ही वो शिया हों या फिर अक़लियतों से जुड़े दूसरे जैसे सरदार हैं, उनको हमेशा निशाना बनाया गया है। आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तान में भले ही वो पाकिस्तान के शिया हों, लेकिन हिंदुस्तान के लोग उनके लिए भी एहतजाज करते हैं। आज ये दिखाया गया श्रीनगर में। शैलेंद्र, देखिए जैसे कि अभी मनोज बता रहे थे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हो, चाहे फिर वो सिख हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या फिर अहमदिया या फिर शिया कम्युनिटी के सदस्य हो, सुरक्षित कोई नहीं है। और इस तरह के हमले हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों के अंदर हमले तेज हुए, खासतौर से जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ था, जब से वो खत्म हुआ है तब से लगातार इन हमलों में इजाफा हुआ है। और पिछले कुछ महीनों के अंदर करीब 134 लोगों की इसमें मौत हुई है। हालांकि ये भी देखना दिलचस्प है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान खुद वो मुल्क है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसी का जो नतीजा खामियाजा आज पाकिस्तान खुद भुगत रहा है कि जहां पर ऐसे आतंकी हमले होते हैं और यहाँ पे कुछ समुदाय को, कुछ कम्युनिटीज को टारगेट किया जाता है। तो ये इसको लेकर जो
जो हमदर्दी है उन तमाम लोगों में है जो इंसानियत पे यकीन करते हैं। वही हम देख पा रहे हैं श्रीनगर की सड़कों पर, वही हम देख पा रहे हैं देश के अन्य हिस्सों से कि किस तरह से पाकिस्तान में उन तमाम इनोसेंट लोगों के लिए भी भारत में आवाजें उठ रही हैं कि ऐसी वायलेंस बंद होनी चाहिए और पाकिस्तान एज ए फेल्ड स्टेट, भले ही वो फेल्ड स्टेट हो, लेकिन अपनी माइनॉरिटीज के लिए, अपने उन कम्युनिटीज के जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए उनको कदम उठाने होंगे, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जी शैलेंद्र, जैसा कि आज एस जयशंकर ने कहा कि प्रमोटर ऑफ टेरर इंडस्ट्री, जैसा कि पाकिस्तान को कहा, अब ये खुद भारी पड़ रहा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की चाहे वो मईशत हो या फिर वहां के लोगों के जो हालात हैं वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की वजह से, दहशतगर्दी को। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को हुई है एससीओ समिट के बाद में, वो बहुत दिलचस्प रही। उसमें उन्होंने कड़े शब्दों में पाकिस्तान की जो ताजा हालात है उसको बहुत अच्छे से बयां किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है फॉरेक्स रिजर्व से भी ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है। तो ऐसे में एक तरफ जहां बिलावल भुट्टो भारत आते हैं, एक बार फिर से वो वही पुरानी बातें रिपीट करते हैं, और वही साथ ही साथ रजौरी में जो अटैक अभी चल रहा है जहां पे अभी सर्च ऑपरेशन फिलहाल अभी चल रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री को विदेश मंत्री जयशंकर ने टेररिज्म इंडस्ट्री का स्पोक्स पर्सन बताया, क्योंकि वो लगातार आतंकवाद के समर्थन में, आतंकवाद के सपोर्ट में इस तरह के आज उन्होंने बयान दिए हैं। और वही उन्होंने सवाल G20 पर भी खड़े किए, जब श्रीनगर में जो समिट होने वाला है आपसे कुछ दिनों के अंदर, उस पर भी सवाल खड़े किए। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कर दिया ये जो पाकिस्तान का G20 से कोई लेना देना नहीं है, उसी तरह से श्रीनगर का भी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कड़े संदेश हैं जो आज विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। बहरहाल शिया तबका इस वक्त सख्त नाराज है पाकिस्तान की इस तरह की हरकतों से, क्योंकि पाकिस्तान में शिया तबका महफूज नहीं है। पाकिस्तान नाकाम रहा है इस तबके को की हिफाजत करने के लिए। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।